Hello everyone. Hi everyone. So welcome to my YouTube channel and myself Dr. Diksha, and I have cleared this recently conducted FMG exam in my very first attempt with a score of 172. And in this video I'll be answering to the questions of my juniors. So I would suggest to watch this video till end ताकि I have tried to compile all the questions which I have received from my juniors in a period of time. So let's get started with the video. Okay, so the first question is that is it possible to clear this FMG exam in a period of 6 months? देखो, answer to this question is a big yes. Yes, you can clear this FMG exam in the very first attempt, as I also did. But देखो यार, you should have I would say कि कोई false claim नहीं करना है कि यार आराम से 6 महीने पढ़ेंगे and it would be very easily done and dusted. You should have, I would say, you should have a basic idea for some of the subjects because यार देखो university exam में भी when we study तो we study for the subjects for giving the university exam also, तो थोड़ा आइडिया तो होता है. तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं ये बोलूँ कि यार देखो ये मेरे को हेल्प करी थी एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो. फर्स्ट आई विल से दैट you should have a basic idea and then you should be sorted up with your resource कि यार इंडिया आने के बाद you should be very clear कि यार मुझे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट या इस जगह से पढ़ना है और जो भी सब्जेक्ट जहाँ से पढ़ना है अपना पहले से क्लियर करके रखो कि you have to follow this resource for this particular subject. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि you are going to follow all the subjects from one platform only. अगर आपको सूट करता है तो well and good, अगर नहीं तो you can, I would share mine, then you decide accordingly. Second thing I would say that you should have a strategic approach because देखो when you are into an online classes you should be able to manage कि how to do the online classes, how to manage the revision along with the classes. And also third thing I would say that helped me and you should inculcate in your practice, that is use of PYQs and PYTs with the theory part. क्योंकि until and unless we do not combine, this is what I have realized and even you will realize, कोई टॉपिक आपने पढ़ा लेकिन जब तक आप उसको PYQs से सॉल्व नहीं करते या कस्टम मॉड्यूल उस टॉपिक पे क्लियर नहीं करते, इन शॉर्ट MCQs जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो टॉपिक हमें क्लियर नहीं होता कि यार उससे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं. तो these things you should be sorted up with these things and yes you can clear this exam in your first go. Let's take the second question. Okay, let's take the second question that what resources I have followed for my preparation. तो पहली बात तो in my college days I had the subscription of Marrow. तो लेकिन यार the basic thing is many of you सबने कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है और आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो, बट द एक्चुअल थिंग इज़ कि एक्चुअल में आपने FMG के लिए प्रिपरेशन कब किया. मेरे पास मैरो था इन माई 4th ईयर. आई हैड कम्प्लीटेड पीडियाट्रिक्स ओवर देयर. देन वहाँ पे ऑप्स था हमारे 4th ईयर में, वो हमने पढ़ा था 4th ईयर एंड देन 5th ईयर अ बिट इन पीसेज में सर्जरी खत्म करी थी. ऑप्शन गाइनी आई वाज डन एंड पीडियाट्रिक्स आई हैव डन, सर्जरी आई हैव डन. दीज 3 मेजर सब्जेक्ट्स आई वुड से आई हैव कंप्लीटेड एंड बिट्स एंड पीसेज में जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती थी तो मेरा जो बेसिक सोर्स था ना पढ़ने का, मैं मैरो से करके और यूनिवर्सिटी एग्जाम आई यूज्ड टू गिव, तो मैं पढ़ती थी. बट व्हाट डिड इट एक्चुअली हेल्प मी, आई वुड से कि यार इट डजेंट डिपेंड ऑन द सोर्स. वहाँ पे या यहाँ पे आकर के एवरी प्लेटफॉर्म इज गुड. यू वुड बी आंसरिंग दीदी क्या ले, मैरो ले, प्रेप ले, सेरिबेलम से पढ़े, डैम से पढ़ें या फिर मिस्ट ले, अराइज लें, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट. कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का प्रिपरेशन ना हो. एवरी कोचिंग इज़ गिविंग देयर बेस्ट. बट यार द थिंग इज़ कि आपको क्या समझ में आता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप कोई भी कोचिंग ले लो, अनटिल एंड अनलेस रिसोर्स सबके बड़े होते हैं. हम रिविजन, ये हमारे रिविजन स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर गोइंग टू बिकम इन द लास्ट डेज, और दिस विल ऑल्सो हेल्प अस इन क्लियरिंग द एग्जाम, कॉन्फिडेंटली आंसरिंग द क्वेश्चंस. सो आई हैड टेकन मैरो ओवर देयर, बट एक्चुअल में क्या इट हेल्प मी, देखो आई हैड स्टडीड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स इन बिट्स एंड पीसेस, बट आफ्टर कमिंग टू इंडिया मैं भूल गई थी. बिकॉज आइडिया था, बेस ऑफ द सब्जेक्ट वॉज देयर, बट जो आई हैवंट रिवाइज द नोट्स.
the main notes. I had watched the main videos of these subjects, but I haven't revised the main notes, तो मैं भूल गई थी. And then after coming to India, it was very sorted यार कि I had completed 4 subjects. Now वो concepts were there, but I have, for all the entire 19 subjects, I have to choose a platform जहाँ से because there is no space of confusion. तभी मैंने पहले बोला कि आपका approach और strategy बहुत clear होना चाहिए. तो I sat down and talked to myself कि ठीक है, let's go for a coaching where I'll be following जो भी एक दो subjects मुझे यहाँ पे नहीं समझेंगे, I would switch to another team. So for my preparation मैंने मिस्ट ज्वाइन किया, और यहाँ इंडिया आने के बाद many of my friends and I together went for online coaching institute, और मैंने घर से preparation करी. So yes, so this was my resource if I would say कि initial days में I was a Marrow user, but yeah, the main thing I would say कि आप भी मेरे से पूछेंगे तो अगर आपने नोट्स रिवाइज किए हैं, आपने कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ से करके आए हैं, अगर आपने मेन नोट्स रिवाइज किए हैं, देन यू कैन गो फॉर आरआर ऑफ दो सब्जेक्ट्स. एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किए और अगर आप भूल गए हैं तो फिर से मेन वीडियोस यहाँ आके देखने का टाइम नहीं है. तो यू हैव टू अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये कोचिंग ज्वाइन करी थी. सो दिस इज माई वे. एंड अगर आपके फर्दर क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो first question I answered कि what were my resource. So my resource was MIST, but you can follow any coaching institute which suits you, Marrow, Prep or Arise or MIST. आप कोई भी ले सकते हो, whichever you think is going to suit you. ठीक है. सो लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन कि नोट्स के बारे में. ठीक है यार, देखो नोट्स अब मैंने जैसे मिस ले रखा था, तो मेरे को हाउ वुड यू प्रेफर, क्योंकि मेरे को हार्ड कॉपी नोट्स ऐसा लगता था कि ठीक है मेरी मेमोरी में ज़्यादा जाते हैं, या सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो समवेयर कि कई बार मैं टैब में भी कर लेती थी एनोटेट. बट मेरे को ऐसा लगता था कि हैंड रिटन नोट्स का इन द पीरियड ऑफ 6 months मेरे पास ऐसा टाइम नहीं था कि यार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, समटाइम्स आई यूज टू वॉच देम एट 1.5 स्पीड. तो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रेफर नहीं किए, मैंने हार्ड कॉपी नोट्स से प्रेफर किए. एंड आई यूज टू एनोटेट माई नोट्स, क्योंकि फिर वहाँ से पिक्चर मेमोरी बार बार बनती जाती है. एंड एनोटेटिंग देयर नोट्स. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड यार कि अबाउट नोट्स, व्हाट आई रियलाइज्ड कि आप जब खुद से नोट्स एनोटेट करते हो और आप मार्क करते हो, तो वो आपकी एक पिक्चर मेमोरी बनती जाती है. और and you will get when you are solving the questions ना, you will get recall. For example, कोई टेबल है, जैसे PSM की कोई टेबल है, वो लेथरिज्म वाला टेबल का जो क्वेश्चन है ना, फूड न्यूट्रिशन का, वो एक टेबल है जिसमें लेथरिज्म, अर्गोटिज्म एंड ऑल वो सारे टेबल है जहाँ पे बार बार क्वेश्चन आता है. ऐसे तो मेरे को PYTs भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ. आई हैव रिटन ऑल द PYTs एट वन प्लेस. जैसे न्यूट्रिशन वाली टेबल हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है. फिर जो आपका ये आपका वैक्सीन का टेबल है, वैक्सीन की टेबल से हर बार एक क्वेश्चन आता है. तो बार बार सेम नोट्स पढ़ने से ऑब्वियसली अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करें तो वो वहाँ की आपकी पिक्टोरियल मेमोरी बनेगी. एंड पिक्टोरियल मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग द MCQ. तो वहाँ पे आपको सेम नोट्स बार बार रिविजन से वही है कि यार द ट्रिक आई वुड से कि यार until and unless you are combining your theory practice with the MCQs, तब तक आपको समझ नहीं आएगा. सेम वैक्सीन की टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है, ओपन वायल पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा हर बार. वो आपका वो जो वैक्सीन के कलर चेंजिंग होती है ना, वो अंदर वाले जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं उस पर क्वेश्चन आएगा. तो हर बार क्वेश्चन आता है. एंड जब आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर जो भी इमेजेस है, PSM इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो यार आपकी पिक्टोरियल मेमोरी बनती जाएगी. तो येस आई वुड से कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, जैसे मेरा यूलास, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, मैंने एनोटेट किया था. अभी राइट नाउ आई डोंट हैव. एंड बट वॉट आई यूज़ टू डू कि जैसे कि मैं सर्जरी की बात करूँ, तो सर्जरी में देखो मैं क्या बोलती थी, या फिर मैं जो भी बोलती थी ना, तो मैं क्या करती थी सर्जरी की चीज़ें. जैसे सर्जरी में व्हाट आई यूज़ टू डू दैट लास्ट में ऐसा हो गया, तो मुझे पता था यार मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस में प्रॉब्लम होती है. और सर्जरी का कॉन्सेप्ट ठीक है, 3-4 बार रिवीजन के बाद आपको कॉन्सेप्ट तो याद हो जाता है. ठीक है, इसमें ये है, इसमें हर्निया का क्वेश्चन एक बार आता ही आता है. लेकिन भूलता क्या है, भूलता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. कन्फ्यूजन होती है जब वहाँ 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, एंड फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है डेफिनेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में. तो मैंने सारे पूरे सर्जरी का मैंने अपने नोट से उसको 4 कम से कम 8-9 पेजेस में उसको कंबाइन कर लिया था. एंड
फिर उसको आई यूज टू रिवाइज इन माई लास्ट डेज. तो वही है, द आर्ट इज टू समराइज दो 200 पेजेस इन द 10 to 20 पेजेस सो दैट आप लास्ट में रिविजन कर सको. बिकॉज यार until and unless we are able to revise, this is the art to clear this exam in the very first attempt. तो अगर आपको वो पेजेस चाहिए, everyone have their own special 28 notebook, जैसे this is mine. तो आपके पास भी अपनी गोल्डन बुक या 28 नोटबुक वो आपकी खुद की होगी एंड यू हैव टू फॉलो. अगर आप मुझे बोलेंगे तो आई विल शेयर सम ऑफ द PYTs ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो बट आई वुड से कि वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप खुद ग्रेजुअली रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपका मटेरियल समराइज हो जाएगा. और दिस इज द आर्ट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन द लास्ट डेज. ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. Okay, so next question is about मतलब how I used to strategize my day. देखो यार, मैंने आपसे पहले शेयर किया कि I was in a online coaching platform. तो as I was missed मेरी कोचिंग थी, तो हमारा क्लासेस चलता था. So initially same I was having problem in फाइंडिंग आउट कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मैं अपना रिविजन शेड्यूल कैसे करूं. तो इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती थी रिविजन शेड्यूल करने में, बट एज द डेज पास्ड आउट मैं वही बोलती हूँ कि यू हैव टू एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए. कि देखो यार, क्लासेस चली, जैसे 9 बजे से क्लासेस चल रही हैं शाम के 7 बजे तक. तो पहले तो ये होता था कि ब्रेक, हमें सिटिंग की हैबिट नहीं थी. तो ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जब इनिशियल डेज में आप करोगे तो आपको सिटिंग की हैबिट नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा. बट जैसे जैसे ग्रेजुअली days will pass and you will realize कि वो हैबिट डेवलप हो जाएगी. एंड सेम डे देखो, स्वीट एंड सिंपल दिस दैट कि भाई आपने ख़त्म किया, 6 से 7 बजे तक क्लासेस ओवर हुई, टेक ब्रेक, और उसके बाद आई यूज टू रिवाइज द कंटेंट सेम डे. बिकॉज यार अगर सेम डे रिवाइज नहीं करते हैं ना तो फिर वो बैकलॉग होता जाता है. चलो एक आध दिन आई कैन अंडरस्टैंड कि बैकलॉग हो गया, बट अगर आप कीप ऑन बिल्डिंग ना तो फिर वो एक तो अगर सेम डे पढ़ा, क्योंकि यही तो ट्रिक है. अगर आप कहते हो आपने 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ा तो आपको अब ये 6 महीने तो डेडिकेटली पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ कोई इफ बट नहीं. एंड वो कैसे होगा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से, यू नीड टू कट ऑफ. I did not have any Instagram, any Facebook till now. मतलब मेरे तो अकाउंट ही नहीं है. I haven't make any social networking site. तो मेरे पास तो था ही नहीं. तो मेरा ये प्लस पॉइंट था कि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा सच नहीं था. बट बहुत सारे लोग होंगे इस एरा में जो इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं, आई मीन चलाते हैं. तो आपको बंद करना पड़ेगा. कितना भी मन करे कि यार ये रील पढ़ाई के लिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है. मेरे पास नहीं था, बिलीव मी. ऐसा कुछ नहीं होता कि छूट जाता है इंस्टाग्राम पे आप कुछ नहीं देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम होगी. तो यू शुड की सोशल नेटवर्किंग टाइम बंद कर दो यार. इवन मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, स्नैपचैट. वो भी मैंने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ के लिए बनाई हुई थी. आई हैव सम, मतलब मेनी ऑफ माई मेमोरीज ओवर देयर. फिर भी मैंने उसे लॉक तो नहीं किया था, इट वॉज मेरे होम स्क्रीन पे ही था, बट मैंने कभी उसे यूज़ नहीं किया. एंड आई हैव रिटन यहाँ पे कि आफ्टर FMG मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि आफ्टर FMG आई विल यूज़. और इसे मैंने मतलब इवन जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया FMG का तब तक मैंने स्नैपचैट भी नहीं खोला था. कि क्योंकि यू हैव टू कट ऑफ योर सेल्फ. मैं बिलीव मी ये वर्क करता है कि अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट कट ऑफ योर सेल्फ ना. क्योंकि वो क्या होने लगता है जब टेस्ट होने लगता है, सपोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा है या आप अपने दे रहे हो, 1 से 2 दोस्त यू शुड हैव इन कांटेक्ट. क्योंकि बहुत ऐसे टाइम आएगा व्हेन यू विल फील लो, यू नीड समवन टू टॉक. तो 1 से 2 जो आपके सच्चे दोस्त होंगे ना, उनसे आप बात करो. यू विल फील रिलैक्स फॉर अगर कोई आपका फ्रेंड उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यू कैन टॉक टू 3 to 5 minutes एंड यू शुड वर्क टुगेदर. बट इंटायर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से आप अवेलेबल नहीं रह सकते हैं. क्योंकि मैं ये नहीं कह रही इंटेंशनली, अनइंटेंशनली भी यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स. और ये एक फीलिंग ऑफ लैगिंग बिहाइंड क्रिएट करता है, एंड जो कि प्रिपरेशन में बहुत एक बुरी चीज़ आई वुड से. बिकॉज आप अच्छा कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंगली, अपने पोटेंशिएशन के हिसाब से, आपकी जो कैपेबिलिटी है आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे होंगे. आज कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, आप अच्छा कर रहे होंगे. बट द टाइम यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विथ योर फ्रेंड, तो वहाँ पे आपको फीलिंग ऑफ लैगिंग बिहाइंड आने लगता है. और मान लो आप अच्छा कर रहे हैं आपके फ्रेंड को, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है. नॉट ओनली फॉर यू, सो फॉर योर लव वंस ऑल्सो, फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो आई वुड से कि आप कट डाउन करो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कभी ज़रूरत है, कभी आपने 1-2 मिनट बात कर ली, दैट इज़ फाइन.
but you cannot talk to your entire group mates, your entire classmates. 1 to 2 friends is fine. And never and one important thing, please do not compare your preparation with anyone. कोचिंग में टेस्ट हुआ, बच्चों के नंबर आ रहे हैं, आप सोचोगे यार मेरे ही कम आ रहे हैं, ये नेचुरल सी फीलिंग है, आता था मेरे भी लीडर्स में नाम आते थे स्टूडेंट्स के, तो मैं क्योंकि यार मेरे प्रिपरेशन में क्या कमी है ये लगता था. बट बिलीव मी, आई whenever I okay so he always said me that never compare your preparations, and we don't used to compare. हम अपने ही एक दूसरे में देखते थे कि हाँ ठीक है यहाँ पे इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, and we both succeeded. I'll share his YouTube channel in the link also. He used to create very good mnemonics, तो वो बहुत अच्छे mnemonics prepare करता था, and I will share his YouTube account in my description. Please do check it out. It will going to help you a lot because it helped me also clearing my exam, तो वो आपको भी help करेगा. तो उसका YouTube channel का link मैं दे दूँगी, and please subscribe to him for more such mnemonics. ठीक है, तो this is because positive environment around you is very very important. And let's take the last question क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, so we will try to cover your other questions in the next video. That how to plan GTs. देखो I would say कि यार initial if you are fresh if you are starting as a blank slate मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है in Russia and आप पूरा fresh start कर सकते हो कर रहे हो after coming to India. तो suppose for you are targeting this June exam, and so till March, at the end of this March when you are done with your like 8 to 10 to 12 subjects, so March से आपको GT देना start कर देना चाहिए, and March, April, May, June. And what frequency? Initially आप 15 days पे 2 GTs दे सकते हो. मैंने कितने GTs दिए थे? मैंने यार कम से कम 5 GTs दिए थे, मतलब 5 GTs तो हमारे कोचिंग के ही हुए थे, एंड मैरो के मैंने 4 GTs दिए थे, इंक्लूडिंग दैट जो लास्ट में दिसंबर में एक नेशनल मॉक आता है, इंक्लूडिंग दैट. तो टोटल 7 to 8 GTs आई हैड गिवन. बहुत ज़्यादा GTs मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज व्हेन आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट रीड बाय द एंड ऑफ सितंबर. तो सितंबर के एंड में जब हमारी फर्स्ट रीड कंप्लीट हुई थी लाइक 8 to 10 सब्जेक्ट्स हो गए थे. उसके बाद अक्टूबर नवंबर में कुछ सब्जेक्ट्स बचे थे, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग GTs. तो GTs के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन टॉक मोर अबाउट कि हाउ टू अप्रोच GTs एंड हाउ टू लाइक रिव्यू GTs. तो ये चीज़ है. And abhi ki life update, yes, let's compile this video with a short sweet note that now as we have completed this exam, and everyone, believe me, when you will clear this exam in your first attempt, in the entire family will be very very happy. And what will motivate you have to be, first of all I would say, you have to be very honest. ठीक है, there will be days जब आपसे पढ़ाई नहीं होगी, there will be days when you will feel very very low, you will be like यार अब नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा. बिलीव मी, सबके साथ आता है, हमारे साथ भी हुआ था. बट यू हैव टू बिलीव कि यार अगर मैंने 100% ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करी है और जो ऊपर वाला है भगवान जी वो देख रहे हैं, तो यू विल डेफिनेट. आई वुड लाइक टू यू दैट दीज वर द थिंग्स आई actually pasted over my when 85 days were left. So then PSM questions, and then रिविजन करना, एक्टिव रिकॉल करना. एंड ये हमारे टीचर कहते थे कि यार यू हैव टू वर्क दैट मच हार्ड दैट करो कि यू खुद से रियलाइज़ करो कि यार वीक से पास नहीं हुए, यू डिज़र्व टू पास. एंड बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन जिसमें हम आए हैं, और बहुत कम ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें नाम के साथ सामने अपने प्रोफेशन ऐड करने का वो अपॉर्चुनिटी मिलता है. एंड वी एज अ डॉक्टर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बी कॉल्ड एज डॉक्टर पहले हमारे नाम के आगे. सो
You all can. I also passed this. You all can pass. Believe yourself, believe your preparation, and stay motivated. We all are here to guide you. If you have any of the question, please comment down below, and in subsequent videos I will try to cover बहुत सारे क्वेश्चन थे, but the video is getting long. तो comment down below अगर आपके और भी कोई question है, और मैं ID mention कर रही हूँ in the description of my friend for mnemonics, and for more because he is creating some of the content regarding UPSC CMS also. All the best for your future. Radhe Radhe, Jai Shri Ram, and yes, you all can clear this exam.